Even online classes, class 8, subject SST, chapter 4, part 2. Disruptive forces. राष्ट्र एकीकरण में बाधक तत्व. You have learned earlier that national integration was never a problem in ancient India, as the entire nation was bound with the fabric of unity. In fact, a planned move to promote the dividing force in the country was entered in the 19th century with the propaganda of race theory. In this race, the theory efforts were made to alienate people from each other. Today, such things are on the decline. Still, there are some disruptive forces that hinder national integration in India. Some people, for self-gain, promote feeling of religions, caste, language, or regions. This creates a situation of conflict and tensions in the society. Such a situation weaken the country's unity and integrity. The disruptive forces of national integration are. पहले बताया जा चुका है कि प्राचीन भारत में राष्ट्र एकीकरण की कोई समस्या नहीं थी. पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा था. देश के अलगाव की प्रवृत्ति को विकसित करने की दिशा में सोचा समझा पहला कदम 19वीं सदी में उस समय उठाया गया जब यहाँ प्रजाति सिद्धांत रेस थियोरी प्रचलित किए जाने लगा और उसके आधार पर भारत में रहने वाले लोगों को अलग अलग करने का प्रयत्न किया गया. हालांकि अब इन बातों का प्रभाव कम होने लगा है. तथापि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचाने वाले कई तत्व विद्यमान हैं. हमारे समाज में व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं. कभी कभी लोग अपने धर्म, अपनी जाति, भाषा अथवा क्षेत्र में मामलों में अधिक भावुक हो जाते हैं. इससे समाज में तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति बनी जाती है. यह स्थिति देश की एकता को कमज़ोर और अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है. राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व इस प्रकार हैं. फर्स्ट है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता. द वर्ड कम्युनलिज्म हैज originated from community. Communalism means feeling of superiority for one community and its faith, and that of inferiority for the other, and to keep the interest of the community above national interest. Communalism has always been a major threat to the unity of our country. We have now how narrow communal feeling caused communal riot in 1947 and split India into two countries, India and Pakistan. Lakhs of people were slain and rendered homeless. Even after so many years of independence, such communal tendencies still persist and riot occur at different places in India. This is all due to ignorance and selfish interest of different sections and religions. बिगोट्री. सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है. सांप्रदायिकता का अर्थ है ऐसी भावनाएं, वह क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझे तथा दूसरे के संप्रदाय और विश्वास को हीन समझे. ऐसे दृष्टिकोण अपने धर्म और अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल देता है, उन हितों को राष्ट्र हितों के ऊपर समझता है. सांप्रदायिकता हमारे देश
की एकता के लिए मुख्य खतरा है। हम सब जानते हैं कि सक्रिय सांप्रदायिक विचारों के कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए और भारत के दो भाग भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गए। लाखों लोग इन दंगों में मारे गए और बेघर हो गए। स्वतंत्रता के इन इतने वर्षों के पश्चात आज भी भारत में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक तनाव सांप्रदायिक दंगों में भी परिवर्तित हो जाता है। यह सब स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। There is no harm in having many religions, but when people think of the interest of one religion's community above the national interest, it certainly harms the unity and integrity of our country. We should consider national interests above all. अनेक पंथ होने से कोई हानि नहीं है, लेकिन जब पथावलंबी अपने हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रखते हैं तो इससे देश की एकता एवं अखंडता को निश्चय ही हानि पहुंचती है। हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। सेकेंड नंबर, लिंग्विज्म, भाषावाद। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। इट इज ए obvious that we love our mother tongue and dialect we use. It is our daily activities. Most of the people of a region understand their mother tongue only. Therefore, regional language is recognized as the official language of the state concerned. It is in accordance to the democratic spirit. It is a essence of impart education thought. Mother tongue use of a language for official purposes and for imparting education help its development to many a times social tensions break over the issue of different language. People of different regions fearful of insecurity put the interests of their language above the national interest. They love their language and have narrow view and hatred for other language. Such a feeling weaken the unity of a nation. We should have some respect for other language as we have for our mother tongue. भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि हमें अपनी मातृभाषा और बोली से प्रेम हो। हम दैनिक क्रियाकलापों में इनका प्रयोग करते हैं। किसी क्षेत्र में के अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा को संबंधित राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भी है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना अधिक सरल और उपयोगी होती है। किसी भाषा को सरकारी कार्यों और शिक्षा के माध्यम के रूप से प्रयोग करने से उस भाषा का विकास होता है। कई बार भिन्न भाषाई प्रश्न पर देश में सामाजिक तनाव पैदा हो जाते हैं। असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर विभिन्न भाषाई समूह अपने भाषाई हितों को राष्ट्र हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। वे अपनी मातृभाषा से प्रेम और दूसरी भाषाओं के प्रति सक्रियता और घृणा करने की भावना रखने लगते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करती है। हमें मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। थर्ड नंबर, कास्टेंस। अवर एसेंट वर्ना ऑफ कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशंस ऑफ मैन. Casteism is a big obstacle in the path of national integration. Caste is a unity which binds the people of the same caste in marriage and food habits. The people of the same caste could not break away from the foundation of caste, and so they fail to play vital role in the society. Gradually, this system become
hereditary and it was linked to birth. Instead of birth, the system became more faulty. जातिवाद हमारे प्राचीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। जाति ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते थे। जाति के सदस्य जाति बंधनों को तोड़ नहीं पाते थे, अतः वह समाज में व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते थे। कालांतर में वह व्यवस्था वंशानुगत हो गई और जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़ दी गई। इसमें बहुत से दोष आ गए। जाति प्रथा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इन टू हाई एंड लो क्लासेस। जाति व्यवस्था समाज को उच्च और निम्न वर्ग में बांटती है। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट्स। उच्च जातियाँ छोटी जातियों का शोषण करती है। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। प्रेशर ऑफ कास्ट्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति पर बाधा आती है। सोशल रिफॉर्मर वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड efforts to remove the evil. The prominent reformers were. जाति भेदभाव के विरुद्ध समय समय पर समाज सुधारकों द्वारा आवाज़ उठाई गई और सुधार के प्रयास किए गए। इनमें प्रमुख हैं संत रामानंद, संत कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड Dr. Bhimrao Ambedkar, etc. Today, with the spread of education, introduction of social reforms, developments of social and technology, and other factors like growth in industries and urbanization, caste system has become less rigid. The Constitution of India has declared untouchability and caste discriminations as illegal. It has been declared that the states shall not allow anybody to discriminate on grounds of caste or creed or religions. The caste system is the major hurdle in the path of national integration. वर्तमान में शिक्षा का प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास और शहरीकरण के से जाति व्यवस्था में के बंधन शिथिल हुए हैं। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद, जातिवाद राष्ट्रीय एकता में एक प्रमुख बाधा है। टेररिज्म, द वर्ड फेसेस गेव ट्रेड फ्रॉम terrorism. This is a crime against democracy and humanity. It is a barbarous form of carnage that terrorists want to convey their message thought fear and terror. The religious fanatics indulge in killing innocent people. They want suppression by these activities. Terrorism is a planned move to spread violence to gain desired purpose. आतंकवाद विश्व के समक्ष आज एक गंभीर चुनौती है। यह लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह एक क्रूरतापूर्ण नरसंहार का स्वरूप है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय और आतंक के द्वारा अपने विचार चाहते हैं। धार्मिक
कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्ति की जान लेने के लिए मारने मरने की घटनाओं में भाग लेते हैं। इन घटनाओं से वे अलगाव चाहते हैं। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सुनियोजित प्रयोग आतंकवाद है। द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस एंड कॉमिट devastating activities, and this damages the country a lot. They believe that government will someday accept their terms. They justify use of violence under democratic and illegal means in the grab of regions. Also at present, terrorism is posing constant threat to disintegrate आवर नेशनल यूनिटी। आतंकवादी हिंसा में विश्वास रखते हैं और विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ करते हैं। इससे देश की भारी क्षति होती है। आतंकवादी यह सोचते हैं कि जनता कभी न कभी उनके मत को समर्थन करेगी, अतः यह हिंसक अलोकतांत्रिक व अनैतिक साधनों का प्रयोग धर्म की आड़ में भी करना न्यायसंगत मानते हैं। वर्तमान में आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। 5 नंबर, सेपरेटिज्म। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेज ऑफ रिलीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेज live here, sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand for a separate state. The border states are often mostly influenced by such feeling and result in a strong feeling of separations. The external forces instigate to destabilize the place and security of the country. Some people living in the country also indulge in separatism to fulfill their vested interests. The enemies of a country and fundamentalists even choose to follow the path of violence and terrorism. The tendency of separations is a major challenge to the unity of country. This feeling of separations could be evaded by social justice, distributed and balanced development. पृथकतावाद क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर वह पृथक राज्य बनाने की मांग करते हैं। प्रायः सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना प्रबल होने लगती है। इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी लोग तो हिंसक साधनों एवं आतंकवादी तरीकों तक का प्रयोग करने लगते हैं। पृथकतावाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है। सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकृत एवं संतुलित विकास से पृथकतावाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है। थैंक यू।